Curriculum development in India. The process of curriculum development in India lies between the two extremes of centralization and decentralization. From time to time, the national government formulates the national policy on education, which includes broad guidelines regarding content and process of education at different stages. These guidelines are further elaborated by the National Council of Educational Research and Training, using as its foundation the NPEs of 1968 and 1986. The two curriculum initiatives have been launched by NCERT. The curriculum for the 10 years school, number 1 is, and the second is the national curriculum for elementary and secondary education. The curriculum framework prepared at the central level provides a broad overview of the school curriculum, including journal objectives, subject-wide objectives, suggested scheme of studies, and guidelines for the transaction of the curriculum and the evaluation of pupils' outcomes. There are three main curriculum development types. Type number 1, Central Learner-Centered Design. Learner-centered design focuses on the understanding that each learner has different characteristics. The number 2 is subject-centered design. Subject-centered design is a traditional approach to curriculum that focus on a particular subject matter or discipline rather than on the individual. Number 3 is problem-centered design is an approach that focuses on developing problem-solving skills, thinking, and communication skills. There are some principles. The principles of the curriculum are norms, values, moralities, and philosophies that will benefit teachers, students, and the whole education system. The curriculum and instructional strategy are essential components of imparting knowledge to in order to achieve educational goals. Various principles of curriculum design have to be put in place. There are many types of curriculum in India, but we will talking about four main types. First CBSE, second ICSE, third IB, and the last CISCE. First we have to differentiate between CBSE, ICSE. CBSE stands for Central Board of Secondary Education, whereas ICSE stands for Indian Certificate for Secondary Education. In CBSE, medium of instruction are Hindi and English, whereas ICSE, the medium of instruction is only English. It is recognized by Government of India in 1929 at Delhi, whereas ICSE recognized by Private Educational Board by various international education system in 1958 at Delhi. CBSE जिसका कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं देते ये लोग, और इनके पास अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। जबकि ICSE की बात करें तो जो इनका कंटेंट होता है ना वो एक्सटेंसिव होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशराइज होते हैं, बच्चों के ऊपर बर्डन देते हैं और ये लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। CBSE के कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जबकि ICSE के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश एंड सेकेंड लैंग्वेज। ये लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के तरीके से पढ़ाते हैं।
अब अगर हम बात करें CBSE की स्कूल की कि इंडिया में इनके स्कूलों की तादाद कितनी है, तो इनके 24,000 इनके इंडिया में स्कूल हैं। और अगर हम आउट ऑफ कंट्री बात करें तो एब्रॉड में इसके 240 स्कूल्स हैं, जबकि ICSE के जो बोर्ड्स के स्कूल्स हैं इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ 2300 से, और एब्रॉड में इसकी जो तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 200 है। अब अगर हम इनके बात करें असेसमेंट क्राइटेरिया की, तो CBSE में जो बच्चों की असेसमेंट होती है ना, वो थ्योरी बेस होती है। मीन्स उनको अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क भी है तो वो परफॉर्म नहीं करवाया जाता। मीन्स उनका प्रैक्टिकल वर्क पे कोई फोकस नहीं होता। जबकि ICSE जो बोर्ड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लैब परफॉर्मेंस होती है। उनको ट्यूटोरियल दिया जा रहा होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं IB की, इंटरनेशनल बैक्यूलरेट। इनकी जो करिकुलम डिमांडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये इनके जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इनका जो फोकस होता है एज़ कम्पेयर CBSE और ICSE के, ये सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। ये जो फोकस करते हैं ना, रिसर्च पे फोकस करते हैं। और ये सारे मैट्रिक के बोर्ड्स हैं, कोई भी इनमें 11 या 12 का बोर्ड नहीं है। इसलिए सब मैट्रिक के 9 मैट्रिक के बोर्ड्स हैं। ये रिसर्च पर बेस करते हैं। और इनके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो लिटरेचर, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज और आर्ट्स, इनका फोकस होता है इस पर। जबकि इनके स्कूलों की तादाद अगर हम देखें तो 3500 इनके स्कूल्स जो हैं वो इंडिया में हैं, और अगर हम इंडिया से बाहर की बात करें तो 130 इनके एब्रॉड में हैं। इनके कंटेंट को हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है या बहुत ज़्यादा इजी है। ये दोनों में से किसी की भी बुक्स को फॉलो कर लेते हैं। ये किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करते किसी भी चीज़ को। लेकिन इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जबकि अगर हम बात करें CISE, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये ना तो प्राइवेट है और ना ही ये पूरा गवर्नमेंट है, ये है सेमी गवर्नमेंट। इनका जो फोकस होता है ना, वो एडवांस लेवल पर जाता है। ये बच्चों को ना एक्स्ट्रा फीड करते हैं हर चीज़। इनके जो कोर सब्जेक्ट्स आते हैं ना, वो बैलेंस होते हैं लैंग्वेज के ऊपर। ये फोकस करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। साइंस, आर्ट्स, एक्सटेंसिव फोकस इज स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि बच्चे को बोलना आना चाहिए जो इनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है। जबकि अगर हम ICSE की बात करें तो वहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की तरह पढ़ाई जा रही है। जबकि वहाँ पे इंडियन बच्चे हैं तो उनकी हिंदी ज़बान फ़र्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो उनका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। NCF करिकुलम फ्रेमवर्क 2020। हम बात कर रहे हैं इंडिया के न्यू करिकुलम की, जो 2020 से लेकर अब तक फॉलो किया जा रहा है। इस सिस्टम के थ्रू जो 3 to 6 ईयर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए टेक्स्ट बुक्स नहीं होती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रायल लर्निंग करवाई जाती है और उनकी सिर्फ मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट की जाती है थ्रू एक्टिविटीज़ एंड अदर थिंग्स। इंडिया में जो पहले सिस्टम फॉलो किया जाता था वो 12 ईयर्स का होता था, मीन फर्स्ट टू 12 क्लास। लेकिन अब जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो 15 ईयर्स का है। उसमें जो है 3 साल प्री स्कूलिंग के होते हैं और बाकी ईयर्स जो होते हैं वो 12 ईयर्स ऑफ देयर स्टडी टिल इंटर। इस सिस्टम को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल प्री स्कूलिंग के होते हैं और 2 साल मीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के होते हैं। देन है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 3 क्लासेस होती हैं 3 to 5 क्लास। देन मिडल स्टेज, इट इज़ आल्सो ऑफ 3 ईयर्स, इसमें 6 to 8 क्लास होती हैं। देन सेकेंडरी स्टेज, इसमें 4 ईयर्स की स्टडी होती है फ्रॉम 9th to 12th क्लास।